Good morning students, welcome in K1 digital classes. In last lecture we were discussing about structure of sperm. Today we shall discuss about remaining portion of structure of sperm and oogenesis. Okay, process of oogenesis. Then after this next point of structure of sperm is a single ejaculation during sexual intercourse a single ejaculation during sexual intercourse, male release about 200 to 300 million sperms. Next point, out of these sperms, 60% sperms are with normal shape and size. Out of the 60%, 40% sperms contain bigger capacity to fertilize the sperm, to fertilize the ovum or egg. Okay, so this is about structure of sperm. After this, next topic is oogenesis. Next heading is oogenesis. Like spermatogenesis, oogenesis is also made up of two words. Like spermatogenesis, oogenesis is made up of two words. First word is oo and genesis. Oo means ovum or egg, and genesis means to synthesis. Oo means ovum or egg and genesis means to synthesis. So, what is oogenesis? The process of formation of egg. From oogonia by meiosis division
is known as oogenesis. Oogenesis. Okay. The process of oogenesis start in embryonic stage of female fetus. फीमेल फीटस का जो एम्ब्रियोनिक जो स्टेज है, जैसे एम्ब्रियो फॉर्म होता है, अगर वो एम्ब्रियो जो है फीमेल है, एम्ब्रियो फीटस में कन्वर्ट होता है, अगर वो फीटस फीमेल है तो उस कंडीशन में जो है, उस कंडीशन में वहीं से जो है 25th वीक जो होता है उस फीटस डेवलपमेंट का, उस 25th वीक में ही जो है ये oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ oogenesis, the process of oogenesis start during embryonic development, of female fetus at about 25th week. At about 25th weeks. 25th weeks means जो 25th week है उसके बाद जो है इसमें oogenesis का प्रोसेस जो है फीमेल फीटस में स्टार्ट हो जाता है. ओके, देन आफ्टर दिस अब होता क्या है कि जितने भी oogonia हैं वो oogonia जो है, oogonia का जो डेवलपमेंट है, oogonia का जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो बर्थ से पहले पहले होता है. बर्थ के बाद जो है एक भी oogonia वो ऐड नहीं होती है. ओके, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो oogonia जो बनने हैं या oogonia जो बनते हैं जिससे आगे वर्म और एग बनेगा, उन oogonia का जो फॉर्मेशन है वो बर्थ से पहले पहले ही हो जाता है. बर्थ के बाद में उनका फॉर्मेशन नहीं होता है. बर्थ के बाद वो oogonia जो उनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और उनका जो फॉर्मेशन होगा वो बर्थ से पहले पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाता है. ओके, सो द फॉर्मेशन ऑफ oogonia takes place in embryonic development and after birth there is no addition of new oogonia. After birth there is no addition of oogonia, but development of oogonia takes place. बर्थ के बाद जो है वो oogonia का डेवलपमेंट होगा, oogonia का जो नंबर है वो ऐड नहीं होगा. ओके, आफ्टर दिस नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ oogenesis कंप्लीट इन ओवेरी. जो oogenesis का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है ओवेरी में. ओके, देन आफ्टर दिस लाइक spermatogenesis, द प्रोसेस ऑफ oogenesis कंप्लीट इन 3 steps. Okay, like spermatogenesis, the process of oogenesis complete in 3 steps. First one is again multiplication phase.
second is growth phase, and third one is maturation phase. So oogenesis complete in 3 steps. Complete in 3 steps. So oogenesis complete in 3 steps. First one is multiplication stage. Second one is growth phase, and third one is maturation phase. Maturation phase. Okay. After this, line diagram of oogenesis. Line diagram of oogenesis like spermatogenesis. After this, line diagram of oogenesis. Oogonia increases in number. Okay, then this is 2n, also 2n, 2n, 2n. Okay, then after this, mitosis, also mitosis, then meiosis first, then meiosis second, meiosis first and meiosis second. Then after this, oogonia. These are also oogonia. Oogonia, primary oocyte, and this is secondary oocyte. Secondary oocyte, then ovum, polar body, first polar body, second polar body, then after this, number of chromosomes. Number of chromosomes from here to here is 46 chromosomes. Then after this, 23 chromosomes. Okay. Then this stage is known as multiplication stage. Multiplication phase.
growth phase, maturation phase. And after this, maturation phase. Okay. Then after this, maturation phase. ये जो स्टेज है बिफोर बर्थ, ये बिफोर बर्थ और ये प्यूबरिटी. जैसे प्यूबरिटी स्टेज आता है, प्यूबरिटी स्टेज के बाद जो ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है और ये मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो बिफोर बर्थ होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन फेज में करते क्या हैं कि जो oogonia है वो अपना नंबर इंक्रीज करते हैं और नंबर इंक्रीज करने के लिए एक डिवीज़न होगा. वो डिवीज़न जो है वो रहता है माइटोसिस. डिवीज़न कौन सा होता है? माइटोसिस. तो माइटोसिस जो डिवीज़न है, माइटोसिस डिवीज़न की हेल्प से ये oogonia जो है ये अपना नंबर इंक्रीज करते हैं और जैसे oogonia का नंबर इंक्रीज होता है तो नंबर इंक्रीज होने के बाद जो है, जैसे ही नंबर इंक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होने के बाद जो है ये oogonia जो है ये, जैसे ये आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन का जो फेज है, मल्टीप्लिकेशन फेज जो है ये बर्थ से पहले जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उसी टाइम स्टार्ट हो जाता है. उस टाइम क्या है कि ये oogonia जो है कंटिन्यूसली डिवाइड होती हैं और डिवाइड होकर अपना नंबर इंक्रीज करते हैं. अब उनमें से क्या है कि एक oogonia जो है उसमें मियोसिस जो है, ये oogonia जो है, ये oogonia जो है मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट है, प्रोफेज फर्स्ट जो है, मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट जो है यहाँ आके प्रोफेज फर्स्ट में ये अरेस्ट हो जाती है. ठीक है. और आगे का जो डेवलपमेंट है वो आफ्टर बर्थ, आफ्टर प्यूबरिटी स्टार्ट होता है. कहने का मतलब क्या हुआ कि जो oogonia है इनका जो फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन तो होता है बर्थ से पहले. तो ये क्या करती है कि ये जो स्टेज है मल्टीप्लिकेशन जो स्टेज है, ये मल्टीप्लिकेशन स्टेज बिफोर बर्थ जो है वो स्टार्ट हो जाता है ओवेरी में. oogonia का नंबर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ये डिवाइड होनी स्टार्ट हो जाती है. उसके बाद जो है ये oogonia है ये मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में आके अरेस्ट हो जाती है. उसके बाद जो इनका डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है जैसे बर्थ हो जाती है. बर्थ होने के बाद जो फिर चाइल्डहुड है, फिर प्यूबरिटी आती है. तो प्यूबरिटी के बाद जो है इनका जो है oogonia का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. oogonia के डेवलपमेंट में होता क्या है कि जो एक oogonia है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और वो जो oogonia है उसके चारों ओर जो है, अब सेकंड स्टेज कौन सी आएगी, जो है ग्रोथ स्टेज आएगी. उस ग्रोथ स्टेज में होगा क्या कि जो एक oogonia है वो अपना साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर लेगी. oogonia जो अपना साइज़ क्या कर लेगी, इंक्रीज़ कर लेगी और उसके चारों ओर जो है दूसरी oogonia जो है वो एक कवरिंग बना लेती है, कवर बना लेगी और उस कवरिंग को बोलेंगे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा. तो देखिए होगा क्या आगे कि बिफोर बर्थ जो है, थोड़ा समझने की कोशिश करें इसको, कि बिफोर बर्थ जो है वो oogonia बने. अब oogonia जो है, एक oogonia जो है अपना साइज़ इंक्रीज़ कर लेता है और साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद जो है ये जो है अपना साइज़ इंक्रीज़ कर लेता है, दूसरी oogonia इसको कवर करके रखती है. तो ये जो है स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल. इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल. ठीक है. इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, प्राइमरी फॉलिकल. और ये जो है, ये जो कवरिंग है इसको बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा. कवरिंग जो है इस कवरिंग को बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा. ठीक है. कवरिंग को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा. और ये जो है ये प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte है और इस प्राइमरी oocyte को जो है कवर करके रखेंगे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा. अब इस स्ट्रक्चर को जो है, इस पूरे स्ट्रक्चर को ही क्या बोलेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल. ये प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte को कवर करके किसने रखा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा. मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल्स जो oogonia ही होती है. अब ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर बनी है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल. स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल. अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, ये प्राइमरी फॉलिकल अब होगा क्या आगे
कि ये जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा जो कवर है ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल में। फिर से क्या है, ये प्राइमरी oocyte है, ये इसके चारों ओर मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की सेल्स है। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा का जो कवरिंग है वो और थिक हो गया, और थिक होने के बाद जो है इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, oocyte वही है, प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte है, और इसके चारों ओर जो है एक थिक जो है वो कवरिंग हो गई है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की, और उसको क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल। अब होता क्या है कि सेकेंडरी फॉलिकल जो है, सेकेंडरी फॉलिकल में जो ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा है इसके चारों ओर एक थीका लेयर और बन जाती है। थीका लेयर में कुछ सेल्स जो है, थीका लेयर जो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, आउटर थीका और इनर थीका, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना, और एक बीच में कैविटी बन जाती है, तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टर्सरी फॉलिकल। स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, टर्सरी फॉलिकल। फिर होगा क्या कि ये जो है, ये क्या है, प्राइमरी oocyte। अब ये जो है यहाँ पे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा है, अब कुछ स्पेरिकल सेल्स है इस टाइप से, और इसके बाद जो है कुछ इस टाइप से सेल्स जो हैं, फ्लैट सेल्स जो है वो प्रेजेंट होगी, और ये फ्लैट सेल्स और ये सर्कुलर सेल्स ये मिलके बनाते हैं थीका, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। तो ये जो है थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना, और ये जो है थीका इंटरना, एक अंदर वाली जो लेयर है थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना, और ये फिर हो गया मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। अब ये जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, और ये फिर क्या है, प्राइमरी oocyte, और इनके बीच में जो है, ठीक है, अब इनके बीच में कैविटी बनेगी, इस प्राइमरी oocyte और इसके बीच में कैविटी बनेगी जिसको क्या बोलेंगे, एंट्रम, और उसके बाद इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, टर्सरी फॉलिकल। तो इसके बाद देखते हैं फिर कैविटी, इसमें जो है एक कैविटी बनेगी, इसी स्ट्रक्चर को वापस बनाना है, लेकिन इसमें करना क्या, आपको एक कैविटी बनानी है बीच में, इस टाइप से कैविटी बनेगी, बीच में एक कैविटी बनेगी, और ये कैविटी कौन सी होगी, एंट्रम। इसके बाद वो सेल्स आ जाएंगी, ये जो है थीका एक्सटर्ना, इसके बाद जो है फिर वो फ्लैट सेल्स, फ्लैट सेल्स, तो ये हो जाएगा थीका एक्सटर्ना, ये हो जाएगा थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। इसके बाद ये हो जाएगा मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के बाद जो है ये कैविटी होगी, कैविटी का नाम होगा एंट्रम, और ये होगा प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte।
अब होगा क्या कि ये जो है प्राइमरी oocyte जो है ये प्राइमरी oocyte डिवाइड होगा और जो थर्ड स्टेज है जिसको मैचुरेशन स्टेज बोलते हैं, ये इस मैचुरेशन स्टेज में जो है वो एंटर कर जाएगा। जैसे प्राइमरी फॉलिकल मैंने बताई थी कि जो प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल जब लास्ट मतलब जो बर्थ के बाद जो है मैचुरेशन जो होता है, मैचुरेशन तक पहुँचते प्राइमरी फॉलिकल का जो नंबर है वो लगभग रहते हैं 60,000 to 80,000 बचता है। और मोस्टली जो है प्राइमरी फॉलिकल्स को क्या हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है। इसके बाद ये जो है एंटर करेगा कौन से स्टेज में, जो सेकंड स्टेज जो थर्ड स्टेज है मैचुरेशन स्टेज, उस मैचुरेशन स्टेज में जो है ये प्राइमरी oocyte जो है इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी फॉलिकल। और ये जो टर्सरी फॉलिकल का जो प्राइमरी oocyte है ये डिवाइड होगा, और डिवाइड कौन से डिवीजन से होगा, मियोसिस डिवीजन से। मियोसिस फर्स्ट होने से ये जो है प्राइमरी oocyte ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte में। ये जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte में। और इसमें दो मेम्ब्रेन बन जाएंगे, आउटर मेम्ब्रेन जो है उसको इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, ये दो इसमें मेम्ब्रेन बन गई। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन को बोलेंगे जोना पेल्यूसिडा। और इससे पहले जो है फिर ये बाहर वाली ये तो बनानी है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। फिर वही जो बाहर वाली जो लेयर है इसके बाद फिर वो फ्लैट सेल्स, ये फ्लैट सेल्स। तो इस टाइप से जो है ये मिलके जो है ये अंदर वाली लेयर इसको बोलेंगे जोना पेल्यूसिडा। ये जो सेकेंड लेयर है इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के बाद जो है ये हो जाएगा सेकेंडरी oocyte। इसके बाद जो है इसमें वापस एंटरम। और ये जो है इसके बाद वही है थीका। ये दोनों लेयर किसकी आ जाएगी, थीका की। ये फिर हो जाएगा मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और ये जो है ये स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो गए, एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। अब इसको क्या बोला जाएगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ये क्या हो गई मैच्योर, ये जो बनी है इसका नाम क्या हो जाएगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये बन गई मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब होगा क्या कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो है, इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से जो सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज होगा, और प्रोसेस को बोलेंगे ओव्यूलेशन। प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, ओव्यूलेशन। इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से जो है जो सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज होगा, और प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन। ओके, तो ये सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज हो जाएगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से, और रिलीज होने के बाद जो है इसके बाद जो है ये रिलीज होगा ये सेकेंडरी oocyte, ये इसका जोना पेल्यूसिडा, ये इसका कोरोना रेडिएटा, और यहाँ पे फिर वही बनानी है आउटरमोस्ट, वही है इस टाइप से फ्लैट सेल्स जो हैं।
ओके। इसके बाद फिर वही सेल्स, सर्कुलर सेल्स, थिका इंटरना की circular cell of theca interna, okay. Then after this membrana granulosa, तो ये जो प्रोसेस है ये कौन सा है? ओव्यूलेशन प्रोसेस। ओव्यूलेशन के बाद होगा क्या कि ये जो है ये स्ट्रक्चर जो है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जैसे ही इसमें से ओवम या एग रिलीज होता है ये कन्वर्ट हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगी कॉर्पस ल्यूटियम। इसके बाद फिर क्या बनेगा? कॉर्पस ल्यूटियम। ये कन्वर्ट हो जाएगी कॉर्पस ल्यूटियम में। ये जो स्ट्रक्चर है ये कन्वर्ट हो जाएगी कॉर्पस ल्यूटियम में। ये स्ट्रक्चर हो जाएगी कॉर्पस ल्यूटियम में। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा और ये स्ट्रक्चर बन गई कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये सीक्रेट करती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब होता क्या है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है उस कंडीशन में जो है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ये कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यूसली मेंटेन रहती है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम ये कन्वर्ट हो जाती है कॉर्पस एल्बिकन्स में। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो है ये कन्वर्ट हो जाती है कॉर्पस एल्बिकन्स। तो ये जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कॉर्पस एल्बिकन्स। कॉर्पस एल्बिकन्स फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इस कंडीशन में जो है ये कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाएगी और ये कॉर्पस एल्बिकन्स जो है वो कुछ टाइम के बाद डीजनरेट हो जाएगी, डीजनरेट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इस कंडीशन में जो है कॉर्पस ल्यूटियम जो है कुछ टाइम के बाद डीजनरेट हो जाएगी। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी और कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगी? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करेगी। अगर ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये सीक्रेट करेगी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और जो है प्रेगनेंसी को मेंटेन रखेगी। कॉर्पस ल्यूटियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें येलो कलर के जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको ल्यूटियन जो है वर्ड यूज़ करते हैं येलो कलर के लिए। इसमें येलो कलर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। और ये एक तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करती है और ये जो है एक हार्मोन सीक्रेट करती है। वो कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। ठीक है, तो आफ्टर दिस
देन द स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। तो अब आपको करना क्या है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ओवेरी में शो करना है, सेम रहेगा, डायग्राम भी सेम बनेंगे, लेकिन ओवेरी का स्ट्रक्चर बनाना है और उस ओवेरी के स्ट्रक्चर में आपको ये जो oogenesis का प्रोसेस है वो शो करना है। अब होता क्या है कि यहाँ तक जैसे ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद जो है ये सेकेंडरी oocyte जो है रियल में ओवम और एग जो है, रियल में जो ओवेरी है उससे ओवम और एग रिलीज नहीं होता है, उससे जो है सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। और जैसे ही सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है ये सेकेंडरी oocyte को कलेक्ट करने का काम करती है फिम्बरी, और फिम्बरी में ओस्टियम के थ्रू जो है ये सेकेंडरी oocyte जो है ओविडक्ट में पहुंचता है, ओविडक्ट के एम्पुला में पहुंचता है, इधर से जो मूव करता हुआ स्पर्म पहुंचता है और स्पर्म जो है ये भी ओविडक्ट में पहुंचता है। और जैसे ही ओविडक्ट में पहुंचता है ये सेकेंडरी oocyte जो है, इस सेकेंडरी oocyte के अंदर जो है जो स्पर्म है वो एंटर कर जाता है। एंटर कैसे करेगा? स्पर्म में जो स्पर्म लाइसिन होते हैं, ये सेकेंडरी oocyte की जो दो वॉल है, एक जोना पैलिसिडा और कोरोना रेडिएटा जो है, इन दोनों को डिजोल्व कर देते हैं और डिजोल्व करने के बाद स्पर्म जो इसके अंदर एंटर करेगा, जैसे ही स्पर्म अंदर एंटर करता है तब इसमें जो है इसका जो न्यूक्लियस है सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस जो वो डिवाइड होगा और डिवाइड होके एक तो पोलर बॉडी बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, एक जो है पोलर बॉडी बनाएगा और साथ में ओवम और एग बनाएगा। ठीक है क्या? तो वो जो ओवम और एग जो है इसके बाद जो है स्पर्म का न्यूक्लियस जो है और इधर ओवम और एग का जो न्यूक्लियस है दोनों फर्टिलाइज होते हैं और फर्टिलाइज होने के बाद जो वो जाइगोट बनता है, फिर आगे जाइगोट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो एक लाइन डायग्राम जो अपन देख रहे थे उस लाइन डायग्राम में देख लेते हैं कि ग्रोथ फेज जो है, ग्रोथ फेज में जो आपने देखा कि एक जो oogon है वो साइज में इंक्रीज हो जाता है, उसको कवर करके रखता है, वो प्राइमरी में कन्वर्ट होता है, फिर सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है, फिर टर्सरी में कन्वर्ट होता है। टर्सरी जो है वो थर्ड स्टेज जो है मैचुरेशन स्टेज उसमें पहुंचता है। और मैचुरेशन स्टेज में होता क्या है कि जो टर्सरी फॉलिकल है उस टर्सरी फॉलिकल का जो प्राइमरी oocyte है वो प्राइमरी oocyte डिवाइड होता है मियोसिस फर्स्ट से, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो जो है सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है क्या? अब सेकेंडरी oocyte जो उसमें दो लेयर बन जाती है, आउटर लेयर जोना पैलिसिडा, इनर लेयर इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है? तो जैसे ही प्राइमरी oocyte डिवाइड होता है मियोसिस फर्स्ट से, तो मियोसिस फर्स्ट से डिवाइड होने से एक तो क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte बनता है, साथ में एक पोलर बॉडी बनती है, इसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। दोनों अनइक्वल साइज़ के होते हैं। प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte है इसका साइज़ बड़ा होता है क्योंकि आगे इसको क्या बनाना होता है, ओवम और एग बनाना होता है, जबकि जो पोलर बॉडी है उसका साइज़ छोटा होता है, स्मॉल साइज़ का होता है और आगे वो डिजनरेट भी हो सकता है और डिवाइड भी हो सकता है। पोलर बॉडी जो है वो डिजनरेट भी हो सकता है और वो डिवाइड भी हो सकता है। ओके, अभी तक ये कोई कंफर्म नहीं है कि वो डिवाइड होगा या डिजनरेट होगा। ओके, इसके बाद क्या है कि सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte जैसे मैंने बताया आपको किस में पहुंचता है, ओविडक्ट में पहुंचता है। ओव्यूलेशन के प्रोसेस, ओव्यूलेशन हो गया, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, इसमें पहुंचा, ओविडक्ट में पहुंचा, उधर से ओविडक्ट में क्या आएगा, स्पर्म आएगा। स्पर्म जो स्पर्म लाइसिन है स्पर्म में, वो इसकी वॉल को क्या कर देंगे, डिजोल्व कर देंगे। जैसे ही डिजोल्व करेंगे स्पर्म इसके अंदर घुस जाएगा। अंदर एंटर करते ही क्या होता है, स्पर्म जैसे अंदर एंटर करेगा, अंदर एंटर करने से क्या है कि स्पर्म जो है वो स्पर्म का न्यूक्लियस और ये सेकेंडरी oocyte जो है ये स्पर्म का न्यूक्लियस होगा और जैसे अंदर एंटर करता है तब सेकेंडरी oocyte जो है वो डिवाइड होता है, फिर से क्या बनाता है, ओवम और एग बनाता है और एक पोलर बॉडी बनाती है। एग का साइज़ बड़ा होता है और पोलर बॉडी का साइज़ छोटा होता है। क्यों? क्योंकि वही है, फिर एग जो है इसमें जो न्यूट्रिएंट और फूड प्रेजेंट होता है, पोलर बॉडी जो आगे डिवाइड भी हो सकती है और डिजनरेट भी हो सकती है। ठीक है, फिर उसका एग के साथ स्पर्म के न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा और जाइगोट बनेगा। ओके, देन आफ्टर दिस स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। ओवेरी की स्ट्रक्चर, ओवेरी में ये शो करना है सब कुछ और उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ oogenesis। डायग्राम सेम रहेगा, ये सारे के सारे डायग्राम ओवेरी में आ जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। ये ब्लड वेसल्स हैं। सबसे पहले ब्लड वेसल्स,
और यहाँ पे जो है ये कुछ सेल्स प्रेजेंट है जिनको प्रीमोडियल सेल्स बोलते हैं। This is the outermost layer of not outermost, innermost layer of ovary. Tunica albuginea, blood vessels, primordial cells, primary follicle, primary follicle, primary follicle, okay. Then remaining portion of oogenesis we shall discuss about in next lecture. Okay, and thank you.